Good morning, everyone. Today we are going to study the third chapter of Civics of Class 6 Understanding Government. Government human communities are made up of large number of people and varied interest and need. However, there are not enough resources to satisfy everyone needs and interest. So, in order to ensure equality, peace, and stability, a set of common rules is needed. The body that makes and execute these rules is known as government. Function of the government. The main function of the government is to lay down rules and regulations to help maintain law and order in society. The government is responsible for settling dispute within the country and maintaining peace. It is the duty of the government to ensure that basic amenities like food, water, and electricity are made available to the people. The development activities of the government include building and maintaining road and railways and providing public transport, making healthcare and education accessible to all. It is the responsibility of the government to carry out rescue operation in time of natural disaster. The government also has a responsibility towards the environment. It tries to control over exploitation of natural resources. Level of governments. Some countries are so big, like India, that they need to be divided into smaller units to task of make the task of administration easier. For example, governance take place at three levels: central, state, and local. Central government, the body which looks after the administration over the entire country, is the central or union government. State government, each state has a government of its own that looks after the affair of the state. Local government, form of government that operate at a smaller administrative unit like district, village, and town or cities, are known as local government. It is a system of government where political authorities is divided between the national and state government, is known as the federal system of government. Organs of the government. The government operates through three main branches or organs: the legislature, the executive, and the judiciary. The legislature, the organ of the government that make laws for the country, is known as the legislature. The executive, the organ of the government that has the power to enforce the laws made by the legislature, form the executive. The judiciary, the branch of the government that interpret the law and ensure that they are abided by, is known as judiciary. Forms of government. The power of a government to rule over a country could be hereditary or taken forcibly or secured through election. Depending on how it get its power, government can be classified into different forms. Monarchy. Countries that have monarchs as the head of state are known as monarchies. Monarchies are usually hereditary. Dictatorship. The rules of a single person or a small group with absolute power is known as a dictatorship. The rulers are known as dictator. Democracy. The form of government that is elected to power by the people, is known as democracy. The quest for universal adult franchise. In many countries of the world, for a long time, women
the poor, and the people of different skin color were neither allowed to contest election nor allowed to vote. They were seen as second class citizens whose opinion on social, political, and economic affairs were not considered important enough. Women, in particular, were stereotyped as being good only at household work that supposedly required no intelligence, education, or effort. Then, in the 19th century, group of people around the world started fighting for universal adult franchise or the right of every adult citizen to vote irrespective of their gender, religion, color, or economic status. Universal adult franchise in India. Today, India is the largest representative democracy in the world. This means that India do not directly participate in the governance of the country, but they have the power to elect or choose their representative who govern on their behalf. But this was not always so. Throughout the ancient and medieval period, India was ruled by dynasties of monarchs. The rule of the British in the modern period also denied many sections of society the right to vote. Those included women, the illiterate, and those without property. Years of struggle and sacrifices have ensured that universal adult franchise is practiced all over the country today. This means that every Indian citizen over the age of 18 can vote. दूसरे चैप्टर में हम आज देख रहे हैं सरकार या गवर्नमेंट की समझने की बात कह रहे हैं। मानव समुदाय जो है विभिन्न लोगों से मिलकर बना है। इसमें विभिन्न प्रकार के रंग के, भाषा के, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। इनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती है और इनकी इच्छा भी अलग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो संसाधन मौजूद हैं उन्हीं संसाधनों से सभी लोगों का इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो ज़रूरत इस जगह पे ये होती है कि ऐसा संस्था या ऐसे संगठन को बनाने के लिए जो कि समाज में समानता और शांति बनाए रखे। इसको कॉमनली हम लोग सामान्य रूप से नियमों का शासन की ज़रूरत कहते हैं। जिस तरीके से जिसके सहारे, जिस संस्था के सहारे ये नियम का शासन जब समाज में लागू होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट का सबसे प्रमुख कार्य जो है नियमों को बनाना, उसको लागू करना और उसको बनाए रखना समाज में। दूसरा उसका कार्य है सरकार का कि वो उत्तरदायित्व तो लेता है हर झगड़े के निपटारे के लिए, चाहे वो देश के बाहर का हो या देश के अंदर में हो, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये भी कार्य है कि उस सभी आधारभूत सुविधाएं जैसे कि खाना, पानी और बिजली सभी तक इसकी पहुंच को वो लगभग एक समान रखे। सरकार या फिर गवर्नमेंट का ये भी काम है कि जो विकास कार्य जो वो करता है उसके द्वारा चलाए जाते हैं उसमें न केवल रेल, रोड और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सभी तक पहुंचाना है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधा भी देना है और शिक्षा भी सब तक पहुंचाना भी है। साथ ही साथ सरकार का यह भी उत्तरदायित्व होता है कि वो क्या करती है, तो जब कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तब सरकार जो है उसमें अपना पूरा सहयोग देती है उस स्थिति से उभरने के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट का यह भी उत्तरदायी होता है कि वह पर्यावरण की भी रक्षा करती है। वो कोशिश करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोहन ना हो सके, उनका विवेकपूर्ण दोहन किया जा सके। लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कुछ देश जो कि बड़े हैं जैसे कि भारत, यहाँ पे सरकार को विभिन्न भागों में बांटा गया है, विभिन्न स्तरों पे उसको बांट के चलाया गया है इकाइयों के रूप में, ताकि इससे आसानी होती है वहाँ पे शासन स्थापित करने में और सरकार को चलाने में। इसको सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यह वह संगठन है जो पूरे देश पे शासन चलाती है और पूरे देश को एक संघ मानकर इस पर कार्य करती है। स्टेट गवर्नमेंट यह
वह संगठन है जो कि देश के अंदर में जो राज्य हैं वे अपने राज्य के अंतर्गत सभी मामलों और सभी विकास कार्यों का वो ध्यान रखते हैं जो राज्य से संबंधित हैं। और स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट, यह वैसा सरकार का गवर्नमेंट का स्वरूप है जो कि छोटे से छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों में बांट के, जैसे जिला स्तर, ग्राम स्तर, शहर पे स्तर पे या नगर पालिका में बांट करके उसको शासन किया जाता है। इस प्रकार ये जो सरकार का जो तंत्र हमने स्थापित किया है, जो राजनीतिक अधिकार के तहत एक पूरे राष्ट्र को इकाइयों में बांट करके उस पर शासन करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। संघवाद की सरकार भी कहा जाता है। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है अपने कार्यों को मुख्य रूप से अलग अलग ब्रांचेज या अलग अलग शाखाओं के रूप में करती भी है। इसके कारण कह सकते हैं कि सरकार की मुख्य 3 शाखाएं होती है: द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेचर यह सरकार का अभिन्न अंग है जो कि कानून बनाता है और कानून बनाने के लिए जाना जाता है, और ये कानून बनाता भी है और देश में लागू भी करता है। एग्जीक्यूटिव वो है जो कि लेजिस्लेचर की तरफ से बनाए गए कानूनों को सुचारू रूप से बलपूर्वक मान्यता प्रदान करके उसको लागू करना। और जुडिशरी जो है, ये दोनों ब्रांच है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बनाए गए कानून को कोई अगर व्यक्ति तोड़ता है या किसी पे तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके निपटारे के लिए, उससे हुए विवाद को निपटारे के लिए हमें जुडिशरी की आवश्यकता होती है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार जब शक्ति में आती है, कोई भी देश क्यों ना हो, वहाँ पे वंशानुगत शक्ति भी मिलती है। कई बार तो वहाँ पे बलपूर्वक सरकार स्थापित किया जाता है, तो कई बार वहाँ पे सभी लोगों के रजामंदी के द्वारा सरकार को स्थापित किया जाता है। किसी क्षेत्र में अगर सरकार वहाँ पर बनी हुई तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे शक्ति जो है सरकार को जो मिली है वो किस प्रकार मिली है। इसको 3 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं: मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की वैसे देश जहाँ पे शासक ही सबसे प्रमुख होता है उस राज्य का या उस देश का, जो कि वो वंशानुगत चलता आ रहा राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वैसे सिस्टम को हम लोग मोनार्कीस कहते हैं। डिक्टेटरशिप यह शासन का वह स्वरूप होता है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति या फिर एक छोटा सा ग्रुप जो है पूरा का पूरा सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है और उस राज्य के ऊपर में शासन करता है। उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, और जो शासक होता है उसको डिक्टेटर कहते हैं। डेमोक्रेसी यह जो शासन का जो स्वरूप है, यह लोगों के द्वारा लोगों को दी जाने वाली वह शक्ति है जिसके सहारे वे शासन में आते हैं और लोगों के ऊपर में शासन करते हैं। द क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बहुत से देशों में, पूरे विश्व में ही कहा जाए, काफ़ी लंबे समय के बाद महिलाएं, गरीब और कुछ अलग रंग के दिखने वाले लोग, चाहे वो उन सभी को ना ही कभी जो है इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार मिला, ना ही उनको वोट देने का अधिकार मिला। काफ़ी लंबे दूरी के बाद इनको जो है समाज में द्वितीय स्थान ही प्राप्त था। इनका वोट का महत्व समझा ही नहीं जाता था। इनको समझा जाता था कि इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है सोसाइटी में। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, वो हिस्सेदारी कर सकते हैं। वहीं पे महिलाओं के साथ तो खास करके सबसे ज़्यादा भेदभाव पूर्ण किया गया था। इनको सिर्फ केवल घर में काम करने के लायक ही समझा जाता था और यह भी माना जाता था इनमें बुद्धि नहीं होता, ना ही इनको शिक्षा देना चाहिए, ना ही इनका कोई प्रयास करना चाहिए इनका विकास के लिए। तब क्या होता है, 19वीं शताब्दी के दौरान 19वीं सेंचुरी में कुछ लोगों का संगठन मिलकर पूरे विश्व में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के लिए फाइट करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और सभी को वैश्विक मताधिकार प्रदान करवाते हैं। जो कि ये वैश्विक मताधिकार जो है वहाँ के नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलता है, जिससे कि वो अपने शासक को चूज कर सकते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो किस जेंडर के हैं, रिलीजन के हैं, कलर के हैं या फिर उनका आर्थिक स्थिति क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। आज भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र
विश्व में माना जाता है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी माना जाता है। इसका साफ मतलब ये है कि ये डायरेक्टली हमारे यहाँ पे सपोज नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे प्रजातंत्र पूरे की पूरे शुरुआत से ही है। यहाँ पे शासन जो है अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से थी। हालांकि अब जो है हमारे देश के सभी जनता जो है अपने लिए सरकार को चुनते हैं, लोगों को अपना मत वोट देकर चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि सभी लोग शासन में जाकर शासन कर सकेंगे। तो जो उसके काबिल होते हैं हम उस पर विश्वास करके उनको वोट देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति शुरुआत से कभी नहीं थी। अगर पुराने समय या मध्यवर्ती समय को देखा जाए तो यहाँ पे वंशानुगत मोनार्क था, डायनेस्टीज मोनार्क था। उसके बाद ब्रिटिश जो है आधुनिक समय में आकर हम पे बहुत सारे जुल्म तो किए ही, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को डिनाइड भी किया गया था समाज से, जो कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ इसमें वे लोग शामिल थे, महिलाएं, अब अनपढ़ लोग, और साथ ही साथ जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको कभी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। काफ़ी संघर्ष के बाद और कई बलिदानों के बाद यहाँ पे भारत में वैश्विक मताधिकार लागू किया गया, और पूरे देश में आज देखा जा सकता है कि सभी लोग जो है जो 18 वर्ष के ऊपर हैं वो अपना मत, अपना वोट दे सकते हैं सरकार को बनाने के लिए।